A hearty welcome to all of you to our YouTube channel CA Sansar. I am speaking Stella from the CA Sansar. Today we are going to talk about a very interesting topic which is the GST R9 and 9C automation utility. And also today I am going to invite our guest is some who doesn't need an introduction and also we are know him, the CA Vivek Kurana sir. Thank you so much, sir, to giving your valuable time and also joining us. First of all, sir, congratulations to you for the Create Utility Software GST R9 and 9C, sir. Now, I would like to invite you to share the thoughts of the today topic, sir. Thank you very much, Stella, for your nice introduction. And I have tried my best. I have created a utility. You can say that a small software for the automation of GSTR 9 and 9C. Now it's the time for the GSTR 9 and 9C, and many members are facing problem because it's a lengthy process. And I had tried. You can do it within in few time after uploading some files there. So I will give you the demonstration. So my sincere thanks to all of you, my family members, and to the board. So let me show you the demonstration. So then please let me know. And one more thing, this is the software. You can say that software or the utility, whatever you want to say that. And this will be free of cost for every member who want to use it. And I also want your true feedback. What more you want, and we will try our best to provide you that thing so that it will help you at the time of filing GSTR 9 and 9C. And in this software, everything is there like GSTR 9 tables, GSTR 9C tables, then reconciliations, then auditor's view, and also the department's view. Everything is there. I will show you each and everything. And in the at the last, I will give you my number. Whoever member who want to take this software, just message me. Our team will provide you, because for that we have to generate the license also. We need your machine ID, because it will work on one machine. And after that you can run it. And right now just check it. I will give you, it's not pre-planned or something. This is your everything. I will show you one by one. So this is your software, CA Sansar, because they people had demanded their name. So CA Sansar GST annual return utility. तो let's first activate it. तो कैसे एक्टिवेट करना है? If you go to the license status and go to browse files, आपको जहां पे भी आपका लाइसेंस है, you go there and just upload your license. This only need one time. You don't need to go for again and again. I have this license at this file. Yes. So like you have uploaded your license, and this activate your license. Now your license is activated. Now you have to go by client and as per their GSTN number. So let me add some GSTN number. Uh, so this is the GSTN number, financial year 24-25. Then create the open project. Now your project is open. अगर आपने कोई गलत GSTN नंबर डाला यहाँ पे, then red signal will be there. If it's a green signal, means project created. Now next step, import data. So I told you, you have to import data. कौन कौन सा? एक तो आपका गवर्नमेंट पोर्टल डाटा, एंड अनदर वन द बुक्स ऑफ अकाउंट. एंड सी द टैब्स, सी द ब्यूटी ऑफ these tabs. It will guide you in the format, the template, in which format you have to upload. And also this helpline button also, you can upload monthly basis, like 12 files you can upload, or on the ईयरली बेसिस. अगर एक फाइल अपलोड करनी है तो एक भी कर सकते हो, 12 फाइल्स अपलोड करनी है 12 भी. एंड ईच एंड एवरीवेयर, लाइक ऑन GSTR 1, GSTR 3 भी, एवरीवेयर दिस हेल्प विल बी देयर. एंड ऑल्सो दिस टेम्पलेट विल बी देयर, कि आप डाउनलोड कर सकते हो उसी फॉर्मेट में है, बिकॉज गवर्नमेंट का तो बेसिकली आपको सेम फॉर्मेट में मिल जाएगा. तो लेट्स ट्राई वन बाय वन. तो let me upload GSTR 1, 3B, 2A, 2B. So I have this one saved here. So this is GSTR 1, then 3B,
and next is 2A. This is 2A, then 2B. So this we have uploaded. Now another thing, books of accounts. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है आपका? आउटवर्ड रजिस्टर, इनवर्ड रजिस्टर मींस सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, देन द एक्सपेंसिव रजिस्टर. तो सेल्स रजिस्टर में भी आपकी डिटेल है, आपको कौन सा अपलोड करना है, टैली से अपलोड करना है, बिजी से या किसी और सॉफ्टवेयर से करना है, कौन कौन सा. दिस इज द हेल्प, दिस वन डिटेल. और यू कैन डाउनलोड द टेम्पलेट. जो यहाँ पे टेम्पलेट है वहां डाउनलोड कर सकते हो. सेम विद द परचेज, कि परचेज में आपको परचेज कंप्लीट रजिस्टर जो आपका आईटी से रजिस्टर है, इंक्लूडिंग इन एलिजिबल, ब्लॉक क्रेडिट एक्सेट्रा, सब कुछ आपको अपलोड करना है. एंड देन expenses. Expenses means which one? Lots of expenses are there, but yes, don't worry, we have mentioned here कि आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस अपलोड करने हैं. रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर, बैंक चार्जेस, ऑडिट, लीगल फीस, एडवर्टीजमेंट, ट्रेवल, प्रिंटिंग. तो आल्सो आप इस फाइल को भी अगर डाउनलोड करोगे टेम्पलेट्स को, देन यू कैन डू इट. तो लेट्स डू इट वन बाय वन. तो फर्स्ट आउटवर्ड रजिस्टर जो आपका सेल रजिस्टर है उसको हमने अपलोड कर दिया. देन परचेज रजिस्टर, इसको अपलोड कर दिया. एंड देन एक्सपेंसेस का जो लेजर, सॉरी ये टेम्पलेट आपका डाउनलोड हो गया, मेरा गलत स्लिप हो गया था. तो यहाँ से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो. यहाँ ब्राउज में जाके यू कैन अपलोड एक्सपेंस लेजर. सो एवरीथिंग इज राइट नाउ अपलोडेड. तो इसको हम क्या करेंगे? इंपोर्ट डाटा. ग्रीन सिग्नल, all files imported successfully. Now let's go to next step, setup and compute. तो सेटअप में क्या करना है? यहाँ पे आपको पार्टी का नाम देना है, पार्टी का जो ट्रेड नेम है. इफ यू वांट टू गिव योर नेम, बिकॉज नाउ इट इज इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप ऑडिटर्स का नाम, दीज आर ऑप्शनल, कि आपको ऑप्शनली देने हैं. एंड देन यहाँ पे टर्नओवर एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कितनी टर्नओवर है, फॉर एग्जांपल मैं एक भी एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ. और यहाँ पे टोटल आईटीसी कितना है आपका एज पर फाइनेंशियली. ये एक ओनली जो फिगर्स है मैंने ऐसे ही माइंड में लिए. आई नो कि जीएसटी 99C आपके कितने पे एप्लीकेबल है, आई एम नॉट सेइंग. एक सिर्फ मैं फिगर डाल रहा हूँ कि आप कितनी फिगर है. सो वो इसको छोड़ दो, यू जस्ट चेक ऑन द सॉफ्टवेयर कि वेदर वर्किंग आर नॉट. और एक एग्जांपल के लिए मैंने डाला है. तो देन ये आपका कंप्यूटेड. नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, just see the magic. Everything is made. Everything. Every tables, audit, everything. Even department view, I will let you know. See, first GSTR 9 tables. See the beauty. Table 4 आपके सामने है. This is the table 4. Outward supply. यहाँ पे आपका कितना टैक्सेबल, IGST, CGST, 4A, 4B, 4D. ये तो मेरे पास डमी डाटा था. कुछ ओनली a small figures was there as import. बट अगर आप उसको इंपोर्ट करोगे कंप्लीट डाटा, देन यू कैन सी द ब्यूटी. कितना ब्यूटीफुल वर्क करता है ये आपका. सो दिस इज यूर जीएसटीआर 4. आप जो टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न्स है. देन सी, दिस इज टेबल 5 आउटवर्ड सप्लाईज, 5A, 5B, 5C. देन नेक्स्ट टेबल 6 कि कितना आईटीसी अवेल्ड हुआ है आपका ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर. 6A, 6B, 6A1, 6C, 6D, 6E. आपके क्योंकि ये डम्मी फिगर्स है इसलिए कुछ डाटा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा. इफ यू हैव द रियल डाटा देन यू विल सी दैट. देन टेबल 7. तो टेबल 7 में क्योंकि इसमें अभी नील था तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, आईटी रिवर्स. बट दे हैव आल्सो मेंशन इन केस, बिकॉज हेल्प इज आल्सो देयर कि इन केस इफ देयर आर सम इशू यू कैन डू इट मैनुअली. तो उसमें भी आपका ऑटो जनरेट हो जाएगा. देन टेबल 8 आपका अदर आईटीसी इंफॉर्मेशन की टेबल 8A, टेबल 8B, 8C, 8D, 8H1, एवरीथिंग विल बी देयर. देन टेबल 9 टैक्स पेड 3B वर्सेस 9 में क्या है, 9 में आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी आपकी. देन डिफरेंशियल टैक्स उसमें शायद वो भी पूरा आया नहीं, आपने वहां पे डिटेल नहीं डाली. देन टेबल 7 HSN समरी, आपकी HSN समरी भी नहीं आई. हाँ, एक चीज शायद हम मिस कर गए. यहाँ पे जो आपने सेटअप करा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डिटेल मेंशन करी थी आपने, यहाँ पे कोई जो 9 की एडजस्टमेंट नहीं डाली. एक हमने एडजस्टमेंट की भी हमने फाइल बनाई है, डमी फाइल. तो आपने एडजस्टमेंट फाइल नहीं डाली यहाँ पे. तो उसको एडजस्टमेंट फाइल, इफ देयर आर सम एडजस्टमेंट यू कैन डू इट. और उसके बाद आप देखिए, दैट्स व्हाई 14 वाज नॉट देयर. दैट्स व्हाई आई सरप्राइज कि 14 क्यों नहीं काम कर रही. अब देखो, तो दिस 14 इज आल्सो देयर.
तो वो एडजस्टमेंट फिगर जो थी आपकी यहाँ पे, वो आपने मेंशन नहीं करी, यहाँ पे आपने अपलोड नहीं करी। तो इफ देयर आर सम एडजस्टमेंट, तो ऑन दैट बेसिस इट विल शो द टेबल 14। आपकी टेबल 14 में आपकी रो 10, 11, 12, 13 एंड डिफरेंशियल टैक्स, एंड देन HSN। आपके सी द ब्यूटी, टोटल ऑटोमेटिकली, वी डिडंट डू एनीथिंग, ऑटोमेटिकली उठा रहे हैं आपके। तो दिस इज GSTR 9। देन नेक्स्ट सी, GSTR 9C। आपके 9C में कौन सी है? पहली टेबल 5 एंड टेबल 7, टर्नओवर रिकंसिलिएशन 5A, 5P, 5Q, 5R। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है आपकी। यहाँ पे आप चेक कर से आप अपने कमेंट्स रिमार्क्स डाल सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो GSTR 9C रिपोर्ट्स को। देन नेक्स्ट इज आपका ITC रिकंसिलिएशन टेबल 12, जो आपका GSTR 9C की टेबल है। देन एक्सपेंसेस ITC, सी द ब्यूटी, जो हमने एक्सपेंसिव लेजर डाला था उसकी वैल्यू, कितना एलिजिबल आईटीसी है, इन एलिजिबल आईटीसी है, एवरीथिंग इज देयर आपके पूरे पूरे यहाँ पे। दिस इज द टेबल 14। देन मैपिंग प्रूव, जो ये नेक्स्ट है आपका डाटा मैपिंग प्रूव, कि कौन कौन सा डाटा आपका टेबल 4 का मैप हो रहा है, कौन सा डाटा जीरो टैक्सेबल, एग्जाम्प्टेड, एक्सेट्रा, आपका B2B, B2C, एवरीथिंग इज देयर। यू कैन कमेंट हियर, यू कैन डाउनलोड रिपोर्ट्स। देन नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन समरी, कि आपकी कितनी ग्रोस टर्नओवर थी, कितना नेट आईसी था, ये मिसमैच है, तो आपका ये रिकंसिलिएशन समरी है। एंड देन आफ्टर दैट क्रिटिकल ऑडिट रिस्क, कि आपको चेक करना है कि क्या रिस्क है, बिकॉज ऑन दिस डाटा वी कैन से दैट दिस इज ऑन द हाई रिस्क। आपको ये भी बता रहा है कि आपका हाई रिस्क है। यहाँ पे लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड इन GSTR 1 इज हायर देन GSTR 3B, कि आपकी इतनी हाई आपने करी है। आपकी जो आपकी GSTR 1 लाइबिलिटी थी, इट वाज 3,91,200, GSTR 3B में आपने दिखाया 3,82,300। तो जो डिफरेंस है इट्स 8,900। एंड देन ITC अवेलेबल जो GSTR 2A में है, इट्स 1,35,860। ITC क्लेम कितना किया है? एक्सेस क्लेम किया है आपने। एंड देन इट्स आल्सो मेंशनड यू कि आपने एक्स्ट्रा क्लेम करा है। देन दिस इज द सिक्योरिटी रिस्क। देन विल शो यू द पेमेंट एंड ITC लेजर, कि कितना ITC आपने कैश में पेमेंट किया है, कितना आपके पास क्रेडिट है, कितना परसेंटेज है आपका। फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर है, यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर सकते हो, क्लोजिंग मेंशन कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको ये पूरी रिकंसिलिएशन एंड द जो भी डिफरेंस है इट विल शो यू। बिकॉज आई डोंट हैव द डाटा, तो मैंने यहाँ पे नील मेंशन कर रखा है। देन नेक्स्ट इज ITC असिस्टेंट, कि आपका कितना ऑटोमेटेड ITC कंप्लायंस जो रिवर्सल है रूल 42 में, जो एग्जम्प्टेड सप्लाई में है। देन सी ब्लॉक क्रेडिट, कि कौन कौन से आपके ब्लॉक क्रेडिट है जो इन्होंने उठाए हैं, ताज होटल का, गिफ्ट वर्ल्ड का, AIG इंश्योरेंस का। तो उसके ऊपर भी इन्होंने मेंशन करा है कि फूड 3 सस्पिशियस इनवॉइसेस एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट का क्या व्यू है, कि if you file GSTR 9 and 9C, then what's the department view as per ASMT 10? In this, they said कि आपकी जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मिसमैच हो रही है आपकी, वो फ्लैग कर दिया इन्होंने। एक्सेस ITC आपने क्लेम कर दिया, वो फ्लैग कर दिया। RCM पेमेंट सर्टिफिकेट है, उसकी डिटेल्स है। एस्टीमेट जो आपको ये भी बता रहा है कि कितनी आपकी डिमांड जनरेट हो सकती है। Can you believe? It's also telling you the department view. Then auditors analysis. As a auditor, उनके क्या एनालिसिस है, तो कितनी टर्नओवर थी लास्ट ईयर की, कितनी टर्नओवर करंट ईयर में है, कितना ग्रोथ है। फिर मंथली आपको बताएगा यहाँ पे, मंथ वाइज क्या लाइबिलिटीज थी आपकी, क्या ड्रॉप हुई, क्या इंक्रीज हुई, एवरीथिंग इन डिटेल। इट्स द ऑडिटर्स व्यू। देन आल्सो सम सैंपल सिलेक्शन, जो टॉप 5 हाई वैल्यू है जो आपको चेक करने हैं। सेल्स में कौन से आपको चेक करने हैं, परचेज में कौन से टॉप हाई आपको चेक करने हैं। दैट आल्सो यू कैन सी एज द ऑडिटर्स व्यू। देन नेक्स्ट इज HSN वैलिडेशंस, कि जो आपके HSN वैलिडेशंस हैं, दीज डिटेल्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड, कि कितने आपके HSN कोड दिस इज में थे, और ये डिटेल्स थी आपकी। देन नेक्स्ट, दिस इज द ब्यूटी, 3-way reconciliations, books of account, GSTR 1 and the GSTR 3B. Oh my God, beautiful. So
This is regarding the 360-degree audit and scrutiny analysis. And then next देखिए, आप कभी किया आपने क्लाइंट से आपने एमआरएल लिया है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन दिस सॉफ्टवेयर इट्स प्रोवाइडिंग यू ऑटोमेटिकली एंड आल्सो टेलिंग यू कि इसको आपको क्लाइंट के लेटर हेड पे लेना है. दिस इज द इंफॉर्मेशन. आप इसको डाउनलोड करिए, क्लाइंट के लेटर हेड पे लीजिए और उनको बोलिए कि हमें दिस इज द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर विच इज मैंडेटरी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आईसीआई. उसमें जो आपके है, तो उसके बाद आपकी चेकलिस्ट कौन सी है, ऑडिटर्स की चेकलिस्ट आप यहाँ पे वेरीफाइड करिए कि आपने क्या क्या चेक किया है. ये सारी आपकी चेकलिस्ट है. वेरीफाइड टर्नओवर विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन जीएसटीआर वर्सेस जीएसटी 3B, चेक जीएसटीआर 2B, वेरीफाइड आरसीबी लायबिलिटी, एवरीथिंग इज मेंशन. आप इसको टिक कर सकते हो कि कौन कौन से आपने चेक कर दिए. देन रिजल्ट विल बी देयर. क्लियर. देन नेक्स्ट, इसके बाद भी है आपका, इसके बाद है आपके रिजल्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, कि आप इसकी जेसन फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो. इफ यू आर सेटिस्फाइड, सी अगेन विल गिव यू द समरी कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, डाटा क्वालिटी स्कोर कितना है. आपका 83 डाटा क्वालिटी स्कोर है एंड मॉडरेट रिस्क है यहाँ पे, ये भी आपको बताएगा. देन एग्जीक्यूटिव समरी में आपकी बताएगा कितनी टर्नओवर थी, कितना आईटीसी बुक्स में थी, कितनी लायबिलिटी कैश रेशियो था. फिर अगेन आपको क्रिटिकली फाइंडिंग्स बता रहे हैं, ऑडिटर्स व्यू भी बता रहे हैं, एंड देन डिपार्टमेंट्स व्यू अगेन बता रहे हैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट कि किस किस में आपका कैश पेमेंट रेशियो में कहां पे कितना रिस्क है, क्या आपका जो हमने पीछे डिस्कस किया था लायबिलिटी मिसमैच, आईटीसी वर्सेस कैश रेशियो, बुक्स वर्सेस रिटर्न, एवरीथिंग इट्स टेलिंग यू. एंड देन विजुअल ट्रेंड, आपके ट्रेंड वाइज बताएगा कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है. और इसके बाद आप इसकी जो डिटेल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल फाइल में, जेएसएन फाइल में डाउनलोड कर सकते हो. यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो. एंड एट द लास्ट आप चेक कर सकते हो रिव्यू चेकलिस्ट इंटरनल यूज कि आपने क्या क्या चेक किया. ये सारी 6 फाइल्स हैं, इनपुट फाइल्स है, टर्नओवर रिकंसिलिएशन है, आईटीसी रिकंसिलिएशन हो गया, आपका टैक्स पेड है, फाइनल जीएसटीआर हो गया, एवरीथिंग इज देयर. एंड देन आपका रिव्यू मटेरियल एज कंपेयर्ड आपका हो गया और आपके डाटा क्वालिटी स्कोर ये है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो. सो दिस इज रिगार्डिंग जो आप कह रहे थे जीएसटीआर 9 एंड 9C ऑटोमेशन. तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट. आप इसको यूज करिए, अपने फीडबैक दीजिए विदाउट एनी चार्जेस. जस्ट मैसेज मी, आई विल आस्क आवर टीम, सी संसार टीम से आपके लिए लाइसेंस जनरेट कर देंगे, आपको फाइल सेंड कर देंगे. आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्लिक, इफ उसको क्लिक करना है, लाइसेंस के साथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा. एंड यू कैन डू इट फॉर द एन नंबर. आप कितनी भी पार्टीज का आप जनरेट कर सकते हो. यहाँ से प्रोजेक्ट सेटअप में जाके आप उनके मेंशन करो जो जीएसटीएन नंबर है, आपकी फाइल जनरेट हो जाएगी आपकी आउटपुट फाइल में. वो आपको पूरा ऑटोमेटिकली आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. सो इवन आई हैव मेंशन दिस इज माय डेवलप्ड बाय सीए विवेक खुराना एंड विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी डेवलपर. किसी डेवलपर की हेल्प नहीं करी. From last 15-20 days, I was so busy in this developing software. I have tried my best, but now I'm so much happy. So yes, uh, Stella ji, I think all member got it. Yes, and this is my detail. किसी मेंबर्स को चाहिए दिस सॉफ्टवेयर, आई वांट कि आप इसको यूज करिए और मेरे को अपने फीडबैक दीजिए कि यस देयर आर दिस मिस्टेक एंड वी वांट दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग वी विल ट्राई कि इसका जो न्यू वर्जन आए, जो यूटिलिटी, वो जो इसकी नेक्स्ट यूटिलिटी आएगी वो उससे भी एडवांस आएगी. एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू से, इसको अभी हटा दो. वन मोर थिंग आई वांट टू से कि वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट. ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, दिस इज ओनली वन पार्ट. फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर आई एम ट्राइंग कि आपका जैन तक आपको प्रोवाइड करूं, इन विच एवरीथिंग विल बी देयर. कि आपको जीएसटीएन वेरीफाइड करना है, आपको जीएसटी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क एंड आई विल ट्राई दैट विद द हेल्प ऑफ एआई, कि उसमें एआई जनरेटेड हो, सब कुछ मिलेगा आपको. आपको जीएसटीआर 3 भी है में हेल्प मिलेगी आपको. इवन आई एम नॉट सो मच एक्सपर्ट अबाउट द जीएसटी, मेरे को एक बेसिक नॉलेज है, बेसिक से भी बेसिक नॉलेज है. देन आल्सो आई हैव ट्राइड, किसको बनाया.
So once again, my sincere thanks to everyone for their support, my family member, my parents, and the God, everyone. Really, thanks a lot. Thank you very much. Yes, Stella. Thank you so much, sir. Again, I want to say you the congratulations for this, and thank you so much. Very wonderful you explain, and we are also happy for that, sir. Thank you so much.